line which are in the same plane are called coplanar lines. Those lines in a single plane are called coplanar lines. Suppose I have drawn whatever number of lines on this plane, means lines on one plane. एक प्लेन में जितने भी लाइंस रहेंगे these are called coplanar lines. अब कोप्लेनर लाइंस रही तो क्या होते हैं कि कोप्लेनर लाइंस रही तो दो प्रकार की होती है कोप्लेनर लाइंस. एक तो होती है कि वो इंटरसेक्टिंग रहेगी, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या रहेगी, सपोज दिस L and M, these are two intersecting lines. Intersecting lines have got one common point. Suppose this O is common point between this line L and M. Then what is meaning of intersecting lines? Intersecting lines are those lines which have one common point between them. And another pair of lines. Suppose railway track का lines है, suppose this L and M. These lines do not have any common point. Means these have got no common point. These are called the parallel lines. तो हम क्या करते हैं, आज में पैरेलल लाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. होती है दिस क्यू लाइन्स आर नॉट इन द सेम प्लेन. सपोज आई हैव ड्रॉन दिस वन लाइन हियर एंड आई हैव ड्रॉन अनदर लाइन इन डिफरेंट प्लेन. I have drawn one line here and I have drawn another line in different plane. Then this maybe they are not parallel, this is not intersecting. Though it may be not parallel, though it is not intersecting, तो क्या होती है, वो इंटरसेक्ट भी नहीं होती और पैरेलल नहीं होती. क्यों नहीं होती, क्योंकि वो सेम प्लेन में नहीं होती. तो अनदर थिंग इज देयर दैट इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस. एक तो बात किया स्क्यू लाइंस. स्क्यू लाइंस ऐसी होती है, स्क्यू लाइंस ऐसी होती है कि जो इंटरसेक्ट भी नहीं करती है, पैरेलल भी नहीं होती. दीज आर स्क्यू लाइंस मीन्स लाइंस इन डिफरेंट प्लेन. लाइंस इन डिफरेंट प्लेन. लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे. लाइंस इन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्क्यू लाइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइंस इन अ सेम प्लेन एंड पर्टिकुलरली दोज लाइंस पैरेलल लाइंस. ये हम बात करेंगे पैरेलल लाइन के बारे में. ये आप जानते हो, दीज आर सपोज दीज आर टू पैरेलल लाइंस, दिस L and this M. These are two lines and let us say these are two parallel lines, L parallel to L. And third line N. This N is transversal. What is meaning of transversal? Transversal is a line. This N is transversal. Transversal is a line which intersects these two lines at different point. Transversal is a line which intersects the two lines, the different line at different point. ऐसा नहीं कि भाई एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है. इनको ये इसमें कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है. ये ट्रांसवर्सल नहीं इसमें कोई भी. तो ये ट्रांसवर्सल नहीं, क्योंकि सभी क्या हो जा रहे, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है. वो ट्रांसवर्सल नहीं इसमें कैसी है, ये दो लाइन है और ये तीसरी लाइन क्या हो रही, ये दो लाइन को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रही. तो आप जानते हो, यदि ये दो पैरेलल लाइन है तो आप जानते हो कि सपोज दिस ए एंड बी corresponding angle, you know definition of corresponding angle. Suppose lines are parallel, then angle A equal to angle B. रीजन है corresponding angle. corresponding angle का definition जानते हो आप? corresponding angle कैसे होते हैं? corresponding angles are on the same side of transversal as well as the maybe on the upper side or maybe on the lower side of the parallel lines. तो ये कैसे होती है? एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स होता है. एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर है. दोनों लाइन के बीच में का इंटीरियर होता है. दैट आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग. दिस इज वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. आई से दिस इज C and D. This is another pair of corresponding angle. Suppose I say this E and F, then it is third pair of corresponding angle, E, F. And another say G and H, then it is fourth pair of corresponding angle. So in parallel line what happens? Corresponding angles are equal. This is one property. In parallel line corresponding angles are equals.
करस्पॉन्डिंग एंगल के दो पैरेलल लाइन के अक्रॉस कितने पेयर होती है? 4 पेयर होती है। 4 पेयर कैसी होती है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। मैंने बोला था इसको ए और ये बोला था बी। दिस ए इक्वल टू बी, देन दिस जी इक्वल टू एच। दिस 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर सेपरेटली इक्वल, एक दूसरे से इक्वल नहीं, ठीक है ना। दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की और एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट में भी दो प्रकार है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। सपोज दिस से these are 4 interior angle. So this is suppose A, this is B, then this is C and this is D. This is adjacent to this interior angle. So we do not want this adjacent. For this is next. Means suppose 1, 2, 3, 4. Then 1, left 2, then third, left 4. Means ये जो है ट्रांसवर्सल के दो साइड में होते हैं। मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एंगल होता है, एक साइड में, हाँ बोलिए। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। दीज आर आउट ऑफ दिस 4 इंटीरियर एंगल। ये 4 इंटीरियर एंगल है, ए बी सी डी। ये बी है, ये डी है। उसमें से ये कैसे है? ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक है, दूसरे साइड में दूसरा है। इसको कहते हैं अल्टरनेट। बट अल्टरनेट विच? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे ही ये बी था और ये डी था, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं। सपोज दिस इज जी and this is H, then it is, these are out of these 4 exterior angles, these are one pair of alternate exterior angle, I, and this is J, this is alternate exterior angle. So what happen, if 2 lines are parallel, then alternate angles are equal. Alternate angles means alternate interior and alternate exterior also. alternate का डेफिनेशन आप देख लीजिए कैसा है। अल्टरनेट में क्या होता है? अल्टरनेट कंसिस्ट ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। मतलब एक तो इंटीरियर रहते हो तो एक्सटीरियर एंगल रहते हैं। इंटीरियर है या तो एक्सटीरियर रहेंगे ऑन द ईदर साइड मीन्स डिफरेंट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। मतलब इंटीरियर रहे तो एक इधर के साइड में रहेगा, एक इधर के साइड में रहेगा, एक इधर के साइड का, एक इधर। एक्सटीरियर रहा तो एक इधर के साइड का रहेगा, एक्सटीरियर इधर का। So this means that this A equal to C, this angle B equal to D, and this angle G equal to angle H, and this I equal to angle J. This is what say second property. दो लाइन पैरेलल रहे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। 2 लाइन पैरेलल रही तो उसके अक्रॉस के अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी regarding the consecutive angles मतलब कैसे देखिए यहाँ पे consecutive angles मतलब देख लीजिए कहाँ पे कैसे। Suppose this is say A and this is B, these are on the same side of transversal and interior। ये दोनों एंगल यदि ये पैरेलल है, suppose L parallel to M is there, then sum of these two angle equal to 180 degree. So if 2 lines are parallel, then what happen? Consecutive angles, consecutive interior angle और consecutive exterior angle की sum होती है। यहाँ पे consecutive interior लिया। Suppose मान लीजिए कि this is C and D, in angle C plus angle D equal to 180 degree. If 2 lines are parallel, then what happen? Consecutive interior हो, consecutive इंटीरियर एंगल्स हो या तो कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल हो, वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री विद सम ऑफ दिस 2 एंगल एंड सम ऑफ दिस 2 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री सेपरेटली। सपोज लेट अस टेक एक्सटीरियर ए बी सी डी। सपोज दिस ई एंड एफ, देन दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, देन एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। Suppose this is G
and this is H, then angle G plus angle H equal to 180 degree. So let us sum up what I say. If two lines are parallel, then first of all, corresponding angles are equal. If two lines are parallel, then alternate angles are equal. If two lines are parallel, then consecutive interior और consecutive exterior का pair का sum 180 degree होता है. Means these two angles and these two angles are sum of these two angles is 180 degree.